So let's see. So basically, okay. So when we talk, audible na? Yeah, audible. Hello. Yes, sir. Okay. So basically, what is derivatization in gas chromatography? So it is a process in which the compound is chemically changed, producing a new compound. Okay, so the compound means the sample is chemically changed, producing a new compound which that has properties more amenable to the particular analytical method. Okay, that means some analytical methods are not working, so we make it amenable by changing the chemical composition. Okay, and that happens in the derivatization in the GC. Okay, some samples are analyzed by GC required derivatization. Okay, why they require derivatization? For making it suitable for analysis. Okay, so if you have to make the sample suitable for analysis, then you have to go for derivatization via GC. GC means gas chromatography. Now, what are that compounds, okay, that require derivatization, and why we have to make it suitable for analysis by changing the chemical compositions? Because some compounds are having poor volatility, poor thermal stability, and that can be adsorbed in the injector, will exhibit no reproducible पीक एरियाज. ओके, एड्सॉर्ब हो जाएंगे इंजेक्टर के साथ में और कोई पीक एरियाज नहीं बनाएंगे, ये हाइट्स नहीं बनेंगे, शेप्स नहीं बनेंगे. तो ऐसे कंपाउंड्स को केमिकली चेंज करना बहुत जरूरी होता है. ओके, और फिर कोई दूसरे कंपाउंड्स होते हैं, द अदर कंपाउंड्स विच पुअरली रिएक्ट विद द डिटेक्टर. ओके, मींस डिटेक्टर कांट डिटेक्ट इट. ओके, दे नीड टू बी टैग्ड. उनको टैग करना पड़ता है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ में. सो टू इम्प्रूव द डिटेक्शन, फॉर एग्जाम्पल टैगिंग विथ क्लोरीन can improve the response in the electron capture detector. Okay, tagging with chlorine can improve the response of electron capture detector. This is the example. In addition, अगर आपको सुटेबिलिटी बढ़ाना है, रिस्पॉन्स बढ़ाना है, सो डेरिवेटाइजेशन की वजह से क्या हो जाएगा कि रिजोल्यूशन में इंप्रूवमेंट आएगा. और रेजोल्यूशन में इंप्रूवमेंट किसके बीच में आएगा? को इल्यूटिंग पीक्स और ओवरलैपिंग पीक्स के बीच में. को इल्यूटिंग पीक्स और कौन से? ओवरलैपिंग पीक्स के बीच में. Okay, I repeat, derivatization is the process by which the compounds are chemically changed. Okay, and once they are chemically changed, what they produce? They produce a new compound, and that has suitable properties to a particular analytical method. Okay, now some samples, why they require derivatization? Because they are having poor volatility, poor thermal stability, because we are burning the sample, so thermal stability is must. Okay, and that can be absorbed in the injector, and once they are adsorbed, okay, so there is no reproducible peak areas, heights and shapes, okay, we expect. Okay, other compounds that respond poorly on a specific detector may need to be tagged with the different functional groups. Okay, and if we have to improve the detection, example, tagging of chlorine. Okay, so once you tag it with the chlorine, okay, so the response would be improved if the detector is what? Electron capture detector. Okay, and furthermore, if you have to improve the suitability in the response, okay, so the derivatization can improve the resolution between the co-eluting peaks and the overlapping peaks. Agree? Can we proceed?
Hello, can we proceed? Hello, audible to all of you? Can we proceed Yes, sir. thereafter? Now the agents, now how we select for the derivatization, okay? So in derivatization, what we do? We do chemical modification of the compound, okay? And once we do the chemical modification, we produce a new compound. And why we produce a new compound? Because we need an improved analytical procedure for GC or LC, liquid chromatography. GC, gas chromatography, or liquid chromatography. Now there are some criteria or the guidelines. Let's see the guidelines. Okay. So the reagent should produce more than 95% complete derivatives. Complete derivative percentage is around 95%. अगर 95% अगर वो properly derivative बना रहा है तो फिर derivatization reagent जो है वो कोई काम का है. Second guideline क्या है? It should not cause any rearrangement or the structural alteration of the compound during formation of derivative. कोई रीअरेंजमेंट नहीं होना चाहिए उसमें, कोई स्ट्रक्चरल अल्टरेशन नहीं होना चाहिए. क्यों? जब फॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनके वहां पे कोई रीअरेंजमेंट और स्ट्रक्चरल अल्टरेशन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. और उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहिए कि सैंपल का लॉस जो हो रहा है उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए. ठीक है ना? उसके बाद में उसने ऐसा डेरिवेटिव प्रोड्यूस करना चाहिए जो कि इंटरेक्ट नहीं करेगा जीसी कॉलम के साथ में. ठीक है ना? उसने ऐसा डेरिवेटिव प्रोड्यूस करना चाहिए जो कि इंटरेक्ट नहीं करेगा जीसी कॉलम के साथ में. ठीक है ना? उसके बाद में नेक्स्ट थिंग, इट शुड प्रोड्यूस a derivative that is stable with respect, it should produce a derivative that is stable with respect to time. तो उसने stable रहना चाहिए with respect to the time. Now objectives. I hope selection of derivative बहुत simple था. पहला वाला क्या था बताओ? It should produce more than 95% of the complete derivative. No interaction, rearrangement, structural alteration during formation of derivative. Third thing, should not contribute to the loss of the sample during the reaction. Fourth thing, it should produce a derivative that will not interact with the GC column. It should produce a derivative that is stable with respect to the time. Now, objective for derivatization, okay? So why we do derivatization? Because we have to improve the resolution, okay? And not only improvement of the resolution, we have to reduce the tailing of the polar compounds, okay? Which contains OH, COH, NH, NH2, SH groups, okay? And other functional groups, okay? Second thing, analysis of relatively non-volatile compounds is the objective of the derivatization. Non-volatile compound. Idrisi Muskan, please unmute yourself. Third thing, mute yourself, sorry. Third thing, reduction of volatility of the compound prior to GC analysis to be there, okay? Fourth thing, improvement of the analytical efficiency and hence increased detectability would be there. Stabilization of the compound for GC analysis is also preferred. These are the objectives of derivatization. These are the objectives of what? Derivatization. Okay. I repeat, we have to improve the resolution. We have to reduce the tailing of the polar compounds. Okay. Which contains OH, COH, NH, NH2, SH and other functional groups.
Second thing, analysis of the relatively non-volatile compounds would be there. Reduction of the volatility of the compound prior to GC analysis. Fourth, improvement of the analytical efficiency and hence increased detectability would be there. Fifth thing, stabilization of the compound for GC analysis is there. Agree? Can we proceed? These are the selection and objectives of derivatization. Selection of the derivatization agent, reagent, and objectives for derivatization. Agree? Yes, sir. Now, types of derivatization reactions. What are the types of derivatization reaction? Okay. So, derivatization reactions used for GC fall into three categories. Okay. First is the alkylation, acylation, and silation. Okay. Alkylation, the basic process by alkylation is referred to esterification. Acylation and silation is there. Okay, so these are the three processes. Okay, what they prefer? They prefer the highly polar material such as organic acids, amides, polyhydroxy compounds, amino acids are rendered suitable for GC analysis by making them suitable, sufficiently volatile compounds. Okay, these general processes are discussed below. Okay. Now, what are the things? Okay, so what are the three types? Alkylation, acylation, and silation. Alkylation में esterification. Basically, these things are there. Yes, Sumaya. Any question? Yes, Sumaya Sharif. Any question? No, sir. Pardon? Hello? No, sir. वो by mistakenly हो गया. Okay, okay. Now, alkylation. This is the first step for the derivatization and the method of production, method of protection of certain active compounds in the sample molecule. Okay, it represents the replacement of the active hydrogen. तो यहाँ पे क्या होता है? रिप्लेसमेंट होता है एक्टिव हाइड्रोजन का किसके थ्रू? बाय एन एलिफेटिक और एलिफेटिक एरोमेटिक कंपाउंड. ओके, एलिफेटिक एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हो सकते हैं? बेंजाइलिक ग्रुप्स हो सकते हैं. और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन बोलते हैं. इक्वेशन 1 आपके सामने है, ये देखो RCOH. ओके, and that is PHCH2X. Now they are converted into RCOCH2PH. This is the esterification process with the release of the HX. Okay, so HX is the halide compound. Okay, equation. So the general reaction for the esterification. Okay, so how this happens? Okay, so now the principal chromatographic use of this reaction is the conversion of the organic acids. So we have to convert the organic acid into what? Alkylation है तो esterification. Especially what type of the organic acid? Methyl esters will be produced. Okay, and they will produce what? They will produce the better chromatograms than the free or organic acids. Okay, so this is the principal chromatographic use of the reaction. Okay, furthermore, if the alkylation is used to prepare ethers, thioethers, thioesters, and alkylamines and amides. Agree? I repeat, alkylation is the first step of the derivatization and it is the method of production of certain active hydrogens in the sample molecule. What it represents? It represents the replacement of the active hydrogen by what? Aliphatic or aliphatic aromatic benzylic groups, referred as esterification. This is the equation. General reaction for the esterification process. So the principal chromatography use of the reaction is the conversion of what? Organic acids, or conversion of the organic acid into what? Esters. Specifically which esters? Methyl ester. This can be asked in the MCQ. So that produces better chromatograms than the free acids. Alkylation reactions can be used to prepare ethers,
thioethers, thioesters, N-alkylamines and amides. Furthermore, sulfonamides. Okay. In general, the products of the alkylations are less polar than the starting material. Why they are less polar than the starting material? This can be asked in the MCQ, because the active hydrogens have been replaced by what? Alkyl groups. And alkyl esters formed offer the excellent stability. Okay. And once they are formed with the excellent stability, they can be isolated and stored for extended period if necessary. In esterification, what happens? Acid will react with the alcohol, and once the acid will react with the alcohol, what they will form? They will form the esters. Okay. In a reaction, the catalyst more often an inorganic compound. What is the name of the catalyst? This can be asked in the MCQ. HCl or thionyl chloride. Agree? 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 Hello? Sir. Now the common derivatization agents which are used in the alkylation, they are the dialkyl acetals, diazoalkanes, alkanes, thereafter PFB-BR, pentafluorobenzyl bromide, benzyl bromide, BF3, boron trifluoride, and these are used in the solvent methanol or the butanol, and the TBH. TBH means tetrabutylammonium hydroxide. Okay. Now this alkylation can be used alone to form the esters, ethers, and amides that can be used in conjunction with what? Acylation or the silation reactions or reagents. Okay, not reaction, reagents. Now these reaction conditions can vary from strongly acidic to strongly basic, with both generating stable derivative. I repeat, what are the derivatization agents used in this? Boron trifluoride, benzyl bromide, PFB-BR, that is pentafluorobenzyl bromide, diazoalkanes, dialkyl acetals. Okay. Now the alkylating agents, they can alone form the what? Esters, ethers, amides. Okay. And can be used in conjunction with the acylation or the silation reagents. Okay. Now the reaction condition can vary from strongly acidic to strongly basic, with both generating the stable derivative. Now examples, dialkyl acetals. Dialkyl acetals का example क्या है? DMF, dimethyl formamide. Typical good example of the dialkyl acetals with the general formula CH3, N, ROR, 22 pH 31. Please mute yourself. So dialkyl acetals, example is the DMF, dimethyl formamide. Good example of the dialkyl acetals with the general formula CH3, NCHO, ROR. Okay. What is the use of this? Esterification of the acids. Okay. Now esterification of acid into what? Into methyl esters. Okay. And furthermore, these dialkyl acetals are having the wide applicability for derivatization of the number of the functional groups containing the certain hydrogens. Example, what is the reason behind this? Because the product is dialkyl acetal, okay, and the isolation derivative is not required, and the reaction mixture can be injected directly into gas chromatograph. This is the reaction of the first choice, for which there is no published method available. The reaction between the NN dimethyl formamide,
dimethyl acetal and carboxylic acid is as follows. The reaction is before you. Equation, the reaction is between NN dimethyl formamide, dimethyl acetals and the carboxylic acids. Although carboxylic acids, phenols, thiols, okay, they directly and react fastly with the DMF. DMF means dimethyl formamide, and what they give the corresponding alkyl derivatives, hydroxyl derivatives, and not readily methylated during the derivatization process. So care should be taken because N dimethyl formamide, dimethyl acetals are moisture sensitive. So moisture sensitive, so care has to be taken. Okay. I hope this is clear to you, or you want me to repeat this thing? Yes. Is it clear to you, or you want me to repeat this thing? Hello? Please let me know. Become audible. Hello? Hello? Can you hear me? Yes, sir. You want to repeat it? You want me to repeat it? No, sir. Okay. Now, different reagents. TBH. TBH means tetrabutyl ammonium hydroxide. Okay. So when we derivatize carboxylic acid, okay, with TBH, TBH means tetrabutyl ammonium hydroxides, okay, what they form? They form the butyl esters, okay. And what is the use of this butyl ester formation? Okay, so longer retention times in the GC. Retention time इनका अच्छा होता है. उसके बाद में जो रिएजेंट्स होते हैं कॉमनली यूज्ड होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट्स के, स्पेशली सुटेबल फॉर द लो मॉलिक्यूलर वेट अमाइंस. ये जो इक्वेशन 3 है आपकी, ये रिप्रेजेंट कर रही है डेरिवेटाइजेशन को फॉर कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्काइल एस्टर्स यूजिंग TBH. ओके, दिस इज द सिंपल रिएक्शन. ओके, ना इक्वेशन क्या बता रही है? कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन बता रही है किसमें? अल्काइल एस्टर्स में, यूजिंग व्हाट? TBH, टेट्राब्यूटिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये जो फॉलोइंग डेरिवेटिव प्रोसीजर है इसको यूज किया जाता है फ्लैश अल्काइलेशन के लिए, विच इज सुटेबल. फ्लैश अल्काइलेशन क्या काम क्या होता है? सुटेबल फॉर बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, थर्मली स्टेबल फैटी एसिड एनालिसिस करना है तो ये बहुत काम की चीज है. एग्री? कैन वी प्रोसीड? हेलो? Yes, sir. Now silation. Silation is the preferred method, prevalent derivatization method. Okay. Why prevalent or in preferred method? Because volatilization is easy of the sample. Thereafter, they are very suitable for non-volatile samples for GC analysis also. Okay. So silation में क्या होता है? बेसिकली इंट्रोडक्शन होता है किसका भाई? सिलिल ग्रुप्स का. सिलिल ग्रुप्स इनटू अ मॉलिक्यूल. यूजुअली सब्स्टिट्यूशन होगा इसका एक्टिव हाइड्रोजन के साथ में. डाइमिथाइल सिलाइल, ये आपके सामने उसका फॉर्मूला है. टेट्राब्यूटिल डाइमिथाइल सिलाइल, ये आपके सामने इसका फॉर्मूला ही लिखना है आपको. क्लोरोमिथाइल डाइमिथाइल सिलाइल, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. इसमें भी वही होता है. क्या होता है? रिप्लेसमेंट होगा एक्टिव हाइड्रोजन का. कौन करेगा? सिराइल ग्रुप्स करेंगे. ठीक है ना. उसके वजह से क्या होगा? पोलैरिटी कम होंगी कंपाउंड की और रिड्यूसिंग होंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की. उसके बाद में क्या है? बहुत सारे जो हाइड्रोक्सिल और अमीनो ग्रुप्स है इनको अपन नॉन वोलेटाइल बोलते हैं और अनस्टेबल होते हैं वो हाइड्रोक्सिल और कौन? अमीनो ग्रुप्स. अनस्टेबल कितने टेम्परेचर पे? 200 to 300 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना. उनको आप सक्सेसफुली एनालाइज करोगे जीसी के थ्रू
आफ्टर सिलेशन। सिलेटेड जो डेरिवेटिव्स रहते हैं ये मोर वॉलेटाइल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, यील्डिंग नैरो एंड सिमेट्रिकल पीक्स, नैरो और सिमेट्रिकल पीक्स मिलते हैं इसमें। एग्री? देखो फिर से बताता हूं, प्रिवेलेंट मेथड है, रेडिली वोलेटिलाइज करता है सैंपल को, वेरी सुटेबल फॉर नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स। सिलेशन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है सिलाइल ग्रुप्स का, यूजुअली कैसे होगा? यस, ये कौन है, DKEJ2? इसको म्यूट करने को बोलो और इसको रीनेम करो अपने आप को। हेलो, हेलो, अरे बाबा सुन रहे हैं ना? आर यू हियरिंग? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस, हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज रिस्पॉन्ड। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हेलो, हाँ, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हाँ, सो व्हाट हैपेंस इन सिलेशन, रिप्लेसमेंट होता है एक्टिव हाइड्रोजन का सिलिल ग्रुप के थ्रू, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होता है, पोलैरिटी कम होती है, उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम होती है, ठीक है ना। बहुत सारे जो हाइड्रोक्सिल और अमीनो ग्रुप्स होते हैं उनको अपन नॉन वॉलेटाइल और अनस्टेबल बोलते हैं, 200 to 300 डिग्री सेल्सियस पे। उनको आप सक्सेसफुली एनालाइज कर सकते हो जीसी पे थ्रू आफ्टर सिलेशन। ये जो सिलेक्टेड डेरिवेटिव्स रहते हैं ये ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं और नैरो और सिमेट्रिकल पीक्स देखते हैं। अब देखो सिलेशन रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म। सिलेशन इज ड्राइवन बाय व्हाट, गुड लीविंग ग्रुप। दैट मीन्स लीविंग ग्रुप में क्या रहेगी, लो बेसिसिटी रहेंगी, ओके। और ये क्या करेगा, लो बेसिसिटी ही नहीं एबिलिटी रहेंगी इसके अंदर की, ये निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा ट्रांजिशन स्टेट पे। उसके बाद में लिटिल और नो बैक बॉन्डिंग इसके बीच में होंगी बिटवीन द लिविंग ग्रुप एंड द सिलिकॉन एटम, ठीक है ना। मैकेनिज्म में क्या होगा, वही रिप्लेसमेंट होगा, क्या, किसका, एक्टिव हाइड्रोजन का। एक्टिव हाइड्रोजन में एग्जांपल कौन से आपके सामने, OH है, COH है, NH है, NH2 है, SH ग्रुप्स का, किसके थ्रू, विद अ ट्राइमिथाइल सिलाइल ग्रुप्स, ठीक है ना। अब साइलेशन में क्या होता है, SN2 रिएक्शन होती है, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। इसमें क्या होता है, जितना बेटर लिविंग ग्रुप रहेगा उतनी बेहतरीन सिलेशन रहेंगी, ठीक है ना। उसके वजह से क्या होगा, बायोमोलिकुलर कंपाउंड प्रोड्यूस होगा इंटरमीडिएट स्टेप पे। और जो जनरल रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ट्राई अल्काइल सिलील डेरिवेटिव्स ये आपके सामने दी हुई है, ठीक है ना। ये जो सैंपल है, ठीक है ना, सिलील ग्रुप्स है, ट्रांजिशन स्टेट है, एंड देयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। और उसके बाद में द लिविंग ग्रुप इन द केस ऑफ ट्राइमिथाइल क्लोरोसिलेन, TMCS क्या है, क्लोरीन एटम है। एग्री? एक क्वेश्चन आ सकता है, सिलेशन न्यूक्लियोफिलिक अटैक में कौन सी इसको फॉलो करता है, SN2 को। जितना बेटर लिविंग ग्रुप रहेगा उतना बेहतरीन सिलेशन होगा। और उसके बाद में क्या बनेगा, बायोमोलिकुलर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, इंटरमीडिएट स्टेप रहती है ये रिएक्शन मैकेनिज्म की। एग्री? हेलो, 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 आर यू गेटिंग? यस सर। ओके, हाँ कौन? हाँ। अरे रहता है भाई, अपने ऐसे सेट है ये बस। कौन है, DK? इसको मैं अभी भगा दूंगा इसको, अगर म्यूट नहीं किया तो भगा दूंगा बेटा इसको। उससे
अभी रेड फ्लैग बन जाऊंगा। हाँ, मैं वही बोला, रेड फ्लैग बन जाऊंगा। हाँ, कर रहा मेरे हूं मैं। दूसरे का नहीं बात मैं करना। आपको निकाल रहा हूँ ग्रुप में से, इसमें से। कौन है आप? नाम बताइए। कौन है आप? दिस इज द लास्ट टाइम। इसके बाद में अगर इन्होंने ऐसा किया तो ना अटेंडेंस मिलेगी ना कुछ होगा इसके अलावा। सिलेशन जो डेरिवेटिव्स है उसमें कुछ केयर लेना पड़ता है कि सैंपल और सॉल्वेंट कैसे रहे, ड्राई रहे, ठीक है ना। और जो सिलिल रिएजेंट्स होते हैं ना, ठीक है ना, जनरली वो मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं और उनको स्टोर किया जाता है टाइटली सील्ड कंटेनर में। और जो सॉल्वेंट्स रहते हैं यूज शुड बी प्योर एंड एज लिटिल एज पॉसिबल। जितना कम सैंपल रहेगा उतना अच्छा। एग्री? आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हेलो? यस सर। Derivatization reagents used in the silation. So reagents used for the silation include कौन से होते हैं? HMDS होता है। HMDS कौन सा होता है? हेक्सामिथाइल डाइसिल्जेन होता है। फिर TMCS होता है, ट्राइमिथाइल क्लोरोसिलेन होता है। TMSI क्या होता है? ट्राइमिथाइल सिलाइल इमिडाजोल होता है। बिस ट्राइमिथाइल सिलाइल एसिटामाइड होता है, BSA बोलते हैं उसको अपन। BSTFA क्या होता है? बिस ट्राइमिथाइल सिलाइल ट्राइफ्लोरो एसिटामाइड। ये जैसे के वैसे नाम चाहिए मुझे, हाँ। MSTFA एन मिथाइल ट्राइमिथाइल सिलाइल ट्राइफ्लोरो एसिटामाइड। अब TMSDEA कौन सा होता है? ट्राइमिथाइल सिलाइल डाइथाइल अमीन। MTBSTFA बहुत लंबा नाम है, एन मिथाइल एन टी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल ट्राइफ्लोरो एसिटामाइड। ध्यान रखिए, हेलो मिथाइल सिलाइल डेरिवेटिव रिएजेंट्स। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कौन से बताओ? एचएमडीएस यानी कौन सा? हेक्सामिथाइल डाइसिलिजेन। TMCS यानी कौन सा? ट्राइमिथाइल क्लोरोसिलेन। TMSSI यानी कौन सा? ट्राइमिथाइल सिलिल इमिडाजोल। BSA यानी कौन सा? बिस ट्राइमिथाइल सिलिल एसिटामाइड। BSTFA यानी कौन सा? बिस ट्राइमिथाइल सिलाइल ट्राइफ्लोरो एसिटामाइड। TMSDA यानी कौन सा? एन मिथाइल ट्राइमिथाइल सिलाइल ट्राइफ्लोरो एसिटामाइड, MSTFA। TMSDA यानी कौन सा? ट्राइमिथाइल सिलाइल डाइथाइल अमाइन। MTBSTFA यानी कौन सा? एन मिथाइल एन टी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलिल ट्राइफ्लोरो एसिटामाइड। लास्ट वाला कौन सा है? हेलोमिथाइल सिलाइल डेरिवेटिव एजेंट्स। ध्यान रखिए, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्री? हेलो? हेलो? अरे आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? हेलो? हाँ। अब ट्राइमिथाइल सिलाइल इमिडाजोल्स। ओके, ये जो TMSI है ना, ये कोई वीक डोनर नहीं है, सिलेक्टिव नेचर का होता है। वीक डोनर नहीं है, सिलेक्टिव नेचर का होता है। रिएक्ट किसके साथ में करता है? अल्कोहल्स के साथ में, फिनॉल्स के साथ में। और किसके साथ में नहीं करता है? किसके साथ में नहीं करता है? अमाइंस और अमाइड्स के साथ में, नाइट्रोजन ग्रुप्स के साथ में। क्योंकि ये सिलेक्टिव है तो ये किसको टारगेट करता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को। किसके अंदर? वेट शुगर्स में। और जो डेरिवेटिव एसिड्स होते हैं, साइड्स होते हैं अमीनो एसिड्स के, ठीक है ना। और ये किसको लीव करता है? अमीनो ग्रुप्स को। फ्री फॉर फ्लोरिनेटेड डेरिवेटाइजेशन। एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बिलो। ये देखो आपके सामने है।
TMSI, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ROH के साथ में रिएक्ट कर रहा है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है और फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है इसके बाद में। एग्री। देखो ट्राइमिथाइल क्या, ट्राइमिथाइल सिलाइल इमेडाजोल क्या होते हैं, वीक डोनर होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं, रिएक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ में, फिनॉल के साथ में, किसके साथ नहीं रिएक्ट करते, अमाइंस और अमाइड्स के साथ में। अमाइंस और अमाइड्स यानी कौन से, नाइट्रो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना। और ये सिलेक्टिव होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इट टारगेट्स द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन द वेट शुगर्स एंड ऑल्सो द डेरिवेटिव एसिड्स साइड्स ऑफ द अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। और ये किसको लीव करते हैं, अमीनो ग्रुप्स को, फ्री फॉर फ्लोरिनेटेड डेरिवेटाइजेशन। एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्री। एग्री। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हेलो। Yes, sir. इक्वेशन जो 5 थी प्रीवियस वाली, उसमें सिलेशन रिएक्शन होता है ट्राइमिथाइल सिलाइल इमिडाजोल का, TMS R बोलते हैं, R डैश है अल्काइल ग्रुप्स और अराइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो डेरिवेटिव प्रोड्यूस होते हैं ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिवाइस डिटेक्टर एनालिसिस के लिए रेडी होते हैं। अब जो TMCS है ये वीक डोनर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड्स। कौन से एसिड, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन से है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बाय प्रोडक्ट होते हैं और एसिडिक होते हैं, इसलिए कॉमनली यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। और ये इट इज ऑफन फाउंड एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम करते हैं ये, ताकि ये इंक्रीज करे TMS डोनर पोटेंशियल को। एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेटाइजेशन रिएक्शन विद द ट्राइक्लोरोसिलेन्स TMCS इज गिवन बिलो। ये जो इक्वेशन 6 है ये आपको दिखा रहा है कि सिलेक्शन रिएक्शन हो रही है ट्राइमिथाइल क्लोरोसिलिन के बीच। जो Y दिया हुआ है HYR का, वो कौन सा है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, NH ग्रुप्स हो सकते हैं, NHR डैश हो सकते हैं, CO हो सकते हैं, R डैश हो सकते हैं। अब ये जो R डैश है ये कौन से है, एल्यूमिनियम और आर्गॉन है। एग्री। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? हेलो, सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? सुन रहे Yes. हैं क्या आप लोग? हाँ। असाइलेशन, असाइलेशन में क्या होगा, एसिड टाइप की रिएक्शन है जिसमें असाइल ग्रुप्स जो रहेंगे वो इंट्रोड्यूस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में। एग्जाम्पल क्या है, इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें रिएक्शन होगा, इंट्रोडक्शन होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा असाइल ग्रुप्स का और लॉस होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स का। कंपाउंड्स जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन्स हो सकते हैं, OH SH NH, उनको आप कन्वर्ट करते हो किसके अंदर में, एस्टर्स में, थायोएस्टर्स में, अमाइड्स में, रिस्पेक्टिवली थ्रू असाइलेशन, ठीक है ना। असाइलेशन एक पॉपुलर रिएक्शन होती है प्रोडक्शन ऑफ द वोलेटाइल डेरिवेटिव्स के लिए, ठीक है ना, जो कि हाईली पोलर होते हैं एंड इन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। असाइलेशन की वजह से स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है और थर्मोलेबाइल बनता है, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप को इंसर्ट करते हैं मॉलिक्यूल में। असाइलेशन की वजह से क्या होता है, एक्सट्रीमली जो पोलर मटेरियल्स होते हैं, एग्जाम्पल कौन से होते हैं, शुगर, इनका एनालिसिस कर पाते हैं अपन वाया GC, ठीक है ना। यूजफुल अल्टरनेटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री टू सिलेशन, ठीक है ना। इक्वेशन 7 आपके सामने दी हुई है। आई रिपीट, डेरिवेटाइजेशन असाइलेशन में क्या करते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन है, इनमें असाइल ग्रुप से इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है ना। एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड, तो रिएक्शन इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है असाइल ग्रुप्स का, लॉस होता है किसका, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स का। कंपाउंड्स दैट कंटेन एक्टिव हाइड्रोजन, OH SH NH, इनको आप कन्वर्ट करते हैं एस्टर्स में, थायोएस्टर्स में और अमाइड्स में थ्रू असाइलेशन। असाइलेशन पॉपुलर रिएक्शन है, किस लिए भाई, प्रोडक्शन करने के लिए वोलेटाइल डेरिवेटिव्स को, जो कि हाईली पोलर होते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, ठीक है ना। असाइलेशन की वजह से क्या इंप्रूव होती है, स्टेबिलिटी कंपाउंड की, जो थर्मोलेबाइल होते हैं, कैसे, बाय इंसर्टिंग, इंसर्ट क्या करते हैं अपन, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स मॉलिक्यूल में डालते हैं,
असाइलेशन की वजह से क्या होता है, जो एक्सट्रीमली पोलर मॉलिक्यूल है जैसे एग्जांपल शुगर, उनका एनालिसिस वाया जीसी आप कर पाते हो, ठीक है ना। और कॉन्जिक्वेंटली एन अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू सिलेशन, ठीक है ना। इक्वेशन 7 आपके सामने है, यहाँ दी हुई है असाइलेशन रिएक्शन। बेनिफिट्स ऑफ असाइलेशन इन जीसी एनालिसिस, तो इसके वजह से क्या होगा, इंप्रूव होगा एनालाइट स्टेबिलिटी। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आप अनस्टेबल ग्रुप्स को। कैन प्रोड्यूस वोलेटाइलिटी ऑन द सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो ग्रुप्स, ठीक है ना। उसके बाद में जितने पोलर कंपाउंड्स होंगे वो नॉन वोलेटाइल होंगे, नॉर्मली डिकम्पोज हो जाएंगे हीट करने के बाद में। और उसके बाद में ये हेल्प करता है क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन में, विच माइट नॉट बी पॉसिबल विद द कंपाउंड दैट आर नॉट सुटेबल फॉर जीसी एनालिसिस। कंपाउंड डिटेक्ट हो जाते हैं लो लेवल पे वाया ईसीडी। देखो इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी, प्रोडक्टिव अनस्टेबल ग्रुप के साथ में, वोलेटाइलिटी को प्रोवाइड करता है ये फॉर कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड्स, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे पोलर ग्रुप्स होते हैं। और बहुत सारे वो पूरे के पूरे पोलर ग्रुप्स कैसे होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं जैसे आप उसको हीट करते हो। थर्ड थिंग क्या है, असिस्ट करता है क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन को, विच माइट नॉट बी पॉसिबल विद द कंपाउंड दैट आर नॉट सुटेबल फॉर जीसी एनालिसिस। कंपाउंड्स जिसको आप डिटेक्ट करते हो वेरी लो लेवल पे थ्रू ईसीडी, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर के थ्रू। एग्री? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस। Yes, sir. Now derivatization reaction used in acylation, कौन से डेरिवेटाइजिंग रिएजेंट यूज करते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरो असाइल इमिडाजोल्स यूज करते हैं। एमबीटीएफए, एमबीटीएफए यानी वही फ्लोरिनेटेड अनहाइड्राइड्स, और उसके बाद में एमबीटीएफए बोला तो एन मिथाइल बिस ट्राइफ्लोरो एसिटामाइड। पीएफबीआई पेंटाफ्लोरोबेंजोइल क्लोराइड यूज करते हैं, ठीक है ना। पीएफपीओएच यानी कौन सा है, पेंटाफ्लोरोप्रोपेनॉल। असाइलेटिंग रिएजेंट्स टारगेट किसको करते हैं, हाईली पोलर मॉलिक्यूल को, मल्टी फंक्शनल कंपाउंड्स को। एग्जांपल कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। असाइलेटिंग एजेंट्स क्या ऑफर करते हैं कि ये दे इंट्रोड्यूस द डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड ग्रुप्स, देयर आफ्टर डिटेक्टेबिलिटी भी बढ़ती है उसके वजह से। अब पहला एग्जांपल देखते हैं अपन, एमबीटीएफए एन मिथाइल बिस ट्राइफ्लोरो एसिटामाइड। ये रिएक्ट करता है रैपिडली किसके साथ में, अमीन्स के साथ में, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के साथ में। और स्लोली किसके साथ में रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में और थायोल्स के साथ में। रिएक्शन कंडीशंस कैसी होती है, माइल्ड होती है, रिलेटिवली इनर्ट होती है, नॉन एसिडिक होती है, बाय प्रोडक्ट्स, और कोई डैमेज नहीं करते जीसी कॉलम को। ये देखो रिएक्शन आपके सामने F3COCN वाली रिएक्शन है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इट इज रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन ऑफ द डेरिवेटाइजेशन ऑफ द अमाइंस hydroxyl groups thiols using MbTFA, that is N-methyl bis trifluoroacetamide। Y इसके जहां पे जो Y दिया है HYR में, वो Y क्या है, ऑक्सीजन सल्फर NH हो सकते हैं, NR डैश ग्रुप्स हो सकते हैं, R डैश ग्रुप्स यानी कौन से होते हैं, अल्काइल और अराइल ग्रुप्स होते हैं। N मिथाइल N बिस ट्राइफ्लोरो एसिटामाइड किस लिए यूज होता है, एनालिसिस ऑफ शुगर के लिए, ठीक है ना। असाइलेशन प्रोसेस इसमें क्या होता है, इट इज यूज फॉर अमाइन ड्रग्स जो स्टिमुलेंट का काम करती हैं, अमाइनो एसिड्स का काम करती हैं और अल्कोहल्स का काम। एग्री? समझा? समझा बेटा? Yes, sir. अब पीएफबीसी है, पेंटाफ्लोरो बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है ना। ये किस लिए यूज होता है, मेकिंग डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल्स एंड सेकेंडरी अमीन्स ऑफ वेरियस सेकेंडरी अमीन्स, हाईली रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट सेंसिटिव ईसीडी डेरिवेटिव्स बनाते हैं अमाइंस के साथ में और फिनॉल्स के साथ में। फिनॉल्स किसका काम करते हैं, रेसिड्यू साइड्स का काम करते हैं इस रिएक्शंस के लिए,
अब ये जो PFBCI होते हैं ये सुटेबल होते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए जो स्टेरिकली कैसे होते हैं, हिंडर्ड होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बेस रहेगा NaOH है, ये क्या करेगा, HCl को रिमूव करेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। जो डेरिवेटाइजेशन प्रोसीजर होंगी इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे बाय रिएक्शन, ठीक है ना, आपके रिएक्शन बीच में दिया हुआ है। इसमें यूज क्या होता है, PFBCI, पेंटाफ्लोरोबेंजोइल क्लोराइड, और ये रैपिड फॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव होती है अमाइंस और फिनॉल के साथ में। आप रिएक्शन आपके सामने है, फॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव अमाइंस एंड द फिनॉल्स यूजिंग PFBCI। I hope this is clear to all of you. Yes. Hello. Hello. Can we proceed? Hello, can we proceed? At least be responsive here, please. Hello, can we proceed? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ. Now chiral derivatization. Chiral derivatization में क्या होता है, एनांशियोमेरिक मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है ना, उसकी रिएक्शन होती है किसके साथ में, एनांशियोमेरिकली प्योर कायरल डेरिवेटाइजेशन एजेंट के साथ में, CDA बोलते हैं उसको। कायरल डेरिवेटाइजेशन एजेंट रहता है वो कैसा रहता है, एनांशियोमेरिकली प्योर रहता है, एक्टिव रहता है, और क्या फॉर्म करता है, दो डायस्टेरोमेरिक डेरिवेटिव्स फॉर्म करता है, ठीक है ना। उसको आप सेपरेट करते हो इन दिस केस यूजिंग GC। अब ये सॉल्यूशन होता है जिसमें एनांशियोमर्स ऑफ द कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन इक्वल मिक्सचर। अगर इक्वल मिक्सचर में है तो उनको अपन क्या बोलते हैं, रैसेमिक मिक्सचर्स बोलते हैं। डायस्टेरोमर्स क्या होते हैं, स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं जिसमें एक से दो ज्यादा स्टीरियो सेंटर्स होते हैं और दे आर नॉट रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और मिरर इमेजेस एंड देयरफॉर नॉट एनांशियोमर्स। दूसरे वर्ड में अगर बोला जाए तो एनांशियोमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। डायस्टेरोमर्स कैसे होते हैं, वो मिरर इमेजेस नहीं होते हैं एक दूसरे के और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। डायस्टेरोमर्स की जो प्रॉपर फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है वो डिफरेंट रहती है और रिएक्टिविटी भी डिफरेंट रहती है। आई रिपीट, कायरल डेरिवेटाइजेशन देख रहे हैं अपन। कायरल डेरिवेटाइजेशन में क्या होता है, रिएक्शन होती है एनांशियोमेरिक मॉलिक्यूल की एनांशियोमेरिकली प्योर कायरल डेरिवेटिव एजेंट के साथ में, CDA के साथ में, क्या फॉर्म करते हैं, डायस्टेरोमेट्रिक डेरिवेटिव्स फॉर्म करते हैं जो कि सेपरेट होते हैं यूजिंग GC। अब इसमें एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें एनांशियोमर्स ऑफ द कंपाउंड्स होते हैं, इक्वल मिक्सचर में रहेंगे तो रैसेमिक मिक्सचर बनता है। डायस्टेरोमर्स कैसे होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा स्टीरियो सेंटर्स होते हैं, नॉट रिलेटेड एज ऑब्जेक्ट्स। B grade. 23 DPH02 mute yourself। 23 DPH02 mute yourself। डायस्टेरोमर्स कैसे होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा स्टीरियो सेंटर्स होते हैं और ये रिलेटेड नहीं होते हैं एज एन ऑब्जेक्ट एट द मिरर इमेजेस, देयरफॉर नॉट एनांशियोमर्स। अदर वर्ड्स में एनांशियोमर्स कैसे होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। डायस्टेरोमर ना तो ये मिरर इमेजेस होते हैं पर नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, और डायस्टेरोमर की जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और रिएक्टिविटी होती है। एग्री? अब जिसमें असिमेट्रिक कार्बन रहेंगे उसको कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं अपन। कायरलिटी एनालाइट मॉलिक्यूल की उसमें क्या होता है, स्पेशल कंसिडरेशन लगता है एनालिसिस के लिए, सेपरेशन के लिए, ठीक है ना। साइंटिस्ट और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज रहती है ये किसके डिमांड करते हैं, डेटा की ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड टॉक्सिसिटी ऑफ द कायरल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है ना, एंड विच इज एसेंशियल अर्जेंट एंड डिमांडिंग फील्ड। और डेरिवेटाइजेशन कैसी होती है, टेडियस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, ठीक है ना। दो वेज है सेपरेट करना है आपको एनांशियोमर्स को बाय क्रोमेटोग्राफी। पहले कैसे करेंगे आप सेपरेशन, ऑप्टिकली एक्टिव स्टेशनरी फेज को। सेकेंड थिंग, प्रिपरेशन ऑफ द डायस्टेरोमेरिक डेरिवेटिव्स दैट कैन बी सेपरेटेड ऑन ए नॉन कायरल स्टेशनरी फेज। अब हम देखेंगे गैस क्रोमेटोग्राफिक कायरल डेरिवेटिव रिएजेंट्स कैसे होते हैं, ठीक है ना।
ये जो गैस क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में जो एनेंशियोमेरिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, और जो ये नॉन रेसेमिक होते हैं, अकायरल स्टेशनरी फेजेस होती है, इसको किस लिए यूज करते हैं? अपन यूज करते हैं एनेंशियोप्योर डेरिवेटिव रिएजेंट्स के साथ में, ठीक है ना। एनेंशियोपोर जो कंपाउंड्स होते हैं, ये कौन से कंपाउंड होते हैं? ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एक कायरलिटी होती है और लिमिट ऑफ डिटेक्शंस भी के अंदर होते हैं ये सब, जिसमें क्या होती है, एक कायरलिटी होती है और लिमिट ऑफ डिटेक्शन के अंदर होते हैं। और ये जो रिएजेंट्स है कौन से वाले? ये एनेंशियोप्योर, ये टारगेट करते हैं सिर्फ एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप को, और क्या बनाते हैं? डायस्टीरियोमर्स बनाते हैं ऑफ द एनेंशियोमेरिक एनालाइट्स को, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्रोमेटोग्राम्स। एग्जाम्पल कौन से है इसके? मोस्ट कॉमन गैस क्रोमेटोग्राम के एमसीएफ। एमसीएफ मीन्स मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, एसएन ट्राइफ्लोरो एसिटाइल प्रोलिल क्लोराइड्स टीपीसीज, अल्फा मिथॉक्सी अल्फा ट्राइफ्लोरो मिथाइल फिनाइल एसिटिक एसिड एमटीपीए। सॉरी, समझा? यू वांट मी टू रिपीट? आई विल रिपीट इट। समझा आपको? हेलो? Yes. हम्म, ओके। सो नाउ एग्जाम्पल टीपीसी है इसका, एन ट्राइफ्लोरो एसिडिल एन प्रोलिल क्लोराइड, ठीक है ना। ऑप्टिकली एक्टिव अमाइन है, एम्फिटामाइन होता है, ठीक है ना। इक्वेशन टाइम 10 बता रहा है ये, ठीक है ना। एन ट्राइफ्लोरो एसिटाइल एल प्रोलिल क्लोराइड कपल्स करता है अमाइंस के साथ में, और क्या फॉर्म करता है? डायस्टेरोमर्स, जो कि आप रिप्रेजेंट करते हो जीसी कॉलम में, ठीक है ना। और ये क्या इंक्रीज करता है? सैंपल वोलेटिलिटी को इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल है आपके सामने ये रिएक्शन जो दी हुई है, एन ट्राइफ्लोरो एसिटाइल एल प्रोलाइल क्लोराइड डेरिवेटाइजेशन ऑफ द अमीन्स। लिमिटेशंस, किसके लिए सुटेबल नहीं है? ये सेमी वोलेटाइल कंपाउंड्स है, ठीक है ना, उनके लिए सुटेबल नहीं है। क्या इंडिकेट करता है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, ये बताएगा। हायर कॉन्सेंट्रेशन है तो मिथेन्स आर रिक्वायर्ड फॉर हायर परफॉर्मेंस। उसके बाद में कैलिब्रेशन बार बार लगता है इसको, यूनिट ऑफ पार्ट्स पर मिलियन रेंज में यूज करते हैं पीपीएम में। एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली वाटर वेपर निकलते जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है तो रैपिड वेरिएशन होता है टेम्परेचर में एट द डिटेक्टर। नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स में अफेक्ट द इंस्ट्रूमेंटेशन सिग्नल। इंस्ट्रूमेंटेशन सिग्नल को वो क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। एग्री? अरे समझ में आया? यस। क्या क्या होते हैं? नॉन सुटेबल होते हैं सेमी वोलेटाइल कंपाउंड के लिए। क्या इंडिकेट करते हैं कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, ये बताते हैं। हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है तो मिथेन्स रिक्वायर होता है हायर परफॉर्मेंस के लिए, बार बार कैलिब्रेशन लगता है। पीपीएम रेंज ही में ही इसकी यूनिट्स को आप निकाल सकते हैं। एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन करता है, यूजुअली वाटर वेपर्स निकलते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, रैपिड वेरिएशन होता है टेम्परेचर में एट द टेम्परेचर। नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट सिग्नल को अफेक्ट करते हैं। एग्री? कैन वी प्रोसीड? हेलो? हेलो? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. ओके। एप्लीकेशन गैस क्रोमेटोग्राफी कब करते हैं? जब फिजिकल सेपरेशन वोलेटाइल मिक्सचर्स में सेपरेट होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट फार्मास्यूटिकल में ये बहुत काम आते हैं, कॉस्मेटिक्स में एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स डिटेक्ट करने के लिए। सैंपल यहाँ पे वोलेटाइल होते हैं, सो ह्यूमन ब्रेथ, ब्लड, सलाइवा, अदर सिक्रेशंस कंटेनिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक वोलेटाइल्स
can be used, analyzed using the GC. Knowing the amount of which the compound is given gives the higher advantage in studying the effect on human health of the environment as well. ठीक है ना? देखो ये सब इंपॉर्टेंट थिंग्स है. एयर सैंपल है तो जीसी से आप कर सकते हो. एयर क्वालिटी कंट्रोल आपको निकालना है, कपल्ड करो उसको फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर के साथ में और डिटरमाइन करो कंपोनेंट्स ऑफ द एयर सैंपल को. ठीक है ना? ऑल्थो ये डिटेक्टर्स यूज किए जाते हैं, एफआईडी मोस्ट अप्रोप्रिएट है. क्यों अप्रोप्रिएट? फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर क्यों अप्रोप्रिएट माने जाते हैं? हाई सेंसिटिविटी होती है, रेजोल्यूशन भी गुड होता है और ये डिटेक्ट करते हैं वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स को. जीसीएमएस एक अनदर मेथड है यूजफुल. किस लिए होती है? ताकि आप डिटरमाइन करें गिवन मिक्सचर को यूजिंग द रिटेंशन टाइम्स एंड अबंडेंस ऑफ द सैंपल. ये मेथड किस लिए अप्लाई होती है? फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के लिए, आइडेंटिफाइंग द अमाउंट ऑफ द केमिकल्स इन द ग्रुप्स. Moreover, the cosmetic manufacturers are also used in this group effectively. How much of the chemical is used for their product? Agree? Hello? Are you getting what I am saying? Are you getting what I am saying? बेटा सुन रहे हो? हेलो बेटा, रिस्पॉन्सिव हो जाओ. मैं Yes, डेट sir. क्लास में नहीं पढ़ाता हूँ. हाँ, ये देखो इंस्ट्रूमेंटेशन इसका बहुत प्यारे तरीके से बताया गया है. ये देखो, ये इंजेक्टर पोर्ट सिस्टम है. ठीक है ना? ओके, यहाँ से देखो कितना प्यारी तरीके से बताया गया है. ये कैरियर गैस पोर्ट है, ये ओवन लगा हुआ है, ये डिटेक्टर है. ठीक है ना? ये कैरियर गैस सप्लाई है, गैस सप्लाई का सिलेंडर है. ये देखो डिटेक्टर्स है. ठीक है ना? उसके बाद में यहाँ पे डेटा रिकॉर्डर है. ये क्या है? डेटा रिकॉर्डर. कितना प्यारा है ये. हेलो, हेलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, अब देखो इसमें क्या होता है? कैरियर गैस सप्लाई होता है. नॉमेनक्लेचर टिपिकली कौन सी कैरियर होती है? हेलियम होती है, नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है. यूज क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? एक्ट एज अ मोबाइल फेस कैरिंग द सैंपल थ्रू द कॉलम. प्रेशर रेगुलेटर होता है यहाँ पे. देखो प्रेशर रेगुलेटर्स है. ठीक है ना? तो प्रेशर रेगुलेटर का काम क्या होता है? कंट्रोल करने का प्रेशर को कैरियर गैस के एंटरिंग द सिस्टम. फंक्शन क्या होता है? कंसिस्टेंट गैस फ्लो रेट मेंशन करने का, रिप्रोड्यूसिबिलिटी मेंशन करने का. फ्लो कंट्रोलर्स दिए हुए हैं यहाँ पे. देखो आपके सामने फ्लो कंट्रोलर्स दिए हुए हैं. ठीक है? ये जो फ्लो कंट्रोलर्स है, मास फ्लो कंट्रोलर होते हैं, रोटामीटर बोलते हैं इनको. रेगुलेट करते हैं फ्लो रेट को कैरियर गैस के थ्रू द सिस्टम. इंजेक्टर पोर्ट नॉमेनक्लेचर स्प्लिटलेस इंजेक्टर होते हैं, ऑन कॉलम इंजेक्टर होते हैं. इंजेक्टर पोर्ट. ठीक है? ये इंजेक्टर पोर्ट है आपका. इसका काम क्या होता है? सैंपल इंट्रोडक्शन, वेपोराइजेशन इफ नेसेसरी एंड मिक्सिंग विद द कैरियर गैस. सैंपल लूप ऑप्शनल होती है फॉर गैस सैंपलिंग. नॉमेनक्लेचर सैंपल वॉल्व इसको बोलते हैं अपन, या फिर क्या बोलते हैं? गैस सैंपलिंग लूप बोलते हैं. सैंपल वॉल्व और गैस सैंपलिंग लूप बोलते हैं. देखो फंक्शन क्या होता है इसका? प्रिसाइज वॉल्यूम में गैसियस सैंपल कैरियर गैस स्ट्रीम में जाना चाहिए. कॉलम नॉमेनक्लेचर कैपिलरी कॉलम यूज करते हैं. कैपिलरी कॉलम में कौन सा कॉलम यूज करते हैं? एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. फ्यूज सिलिका कॉलम, पैक्ड कॉलम. फंक्शन क्या होता है? स्टेशनरी फेज वेयर द सेपरेशन ऑफ द सैंपल कंपोनेंट ऑकर्स. ठीक है ना? कॉलम ओवन. नॉमेनक्लेचर टेम्परेचर प्रोग्राम्ड ओवन. टेम्परेचर प्रोग्राम्ड ओवन बोलते हैं उसको. नॉमेनक्लेचर उसका क्या है? ठीक है? अब डिटेक्टर कौन सा यूज करते हैं इसमें? एफआईडी. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको आयनाइज करके आप डिटेक्ट कर सकते हो एफआईडी के थ्रू. टीसीडी चेंज इन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द गैस.
उसको मेंशन करना है तो यूज कर सकते हो। ईसीडी सेंसिटिव टू हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स, ठीक है ना, डिटेक्ट करता है बाय मेजरिंग द कैप्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। फंक्शन क्या होता है? डिटेक्ट करने, क्वांटिफाई करने का सेपरेटेड सैंपल्स को जब वो एग्जिट करेंगे कॉलम से। अभी जो डेटा सिस्टम है, डेटा रिकॉर्डर बोलते हैं जिसको, डेटा सिस्टम, कंप्यूटर नॉमेनक्लेचर, सीडीएस क्रोमेटोग्राफिक डाटा सिस्टम बोलते हैं इसको। फंक्शन रिकॉर्ड, डिटेक्टर सिग्नल को रिकॉर्ड करने का, प्रोसेस करने का डेटा को, जनरेट करने का क्रोमेटोग्राम को। वेस्ट वेंट, नॉमेनक्लेचर क्या है? वेंट लाइन, एग्जॉस्ट बोलते हैं। फंक्शन सेफली वेंट द एक्सेस ऑफ द कैरियर गैस को निकालने का और अदर वेस्ट को फ्रॉम द सिस्टम। मेकअप गैस सप्लाई फॉर सर्टेन डिटेक्टर में यूज होते हैं। नॉमेनक्लेचर क्या है? मेकअप गैस, नाइट्रोजन और हीलियम का रहेगा। फंक्शन क्या रहता है? एफिशिएंसी बढ़ाने का, सेंसिटिविटी बढ़ाने का इन सर्टेन डिटेक्टर लाइक द एफआईडी। सेप्टम्स, नॉमेनक्लेचर क्या है? रबर सेप्टम बोलते हैं उसको। और फंक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द सैंपल थ्रू द सीरीज एंड मेंटेनिंग द सिस्टम इंटेग्रिटी। गार्ड कॉलम ऑप्शनल। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? गार्ड कॉलम ही बोलते हैं इसको। फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है एनालिटिकल कॉलम को कंटेमिनेशन से। कैसे? ट्रैप करता है नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स को। बैकफ्लैश सिस्टम ऑप्शनल होता है। नॉमेनक्लेचर बैकफ्लैश वॉल बोलते हैं उसको, रिटेंशन गैप बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है? हैवी कंटेमिनेंट्स को प्रिवेंट करता है ताकि वो डिटेक्टर तक ना पहुंचे बाय रिवर्सिंग द फ्लो इन द कॉलम। एग्री? अरे समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन था ये जीसी का। यस, हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? Yes, sir. ओके। लॉक कर रहा हूं मीटिंग को अटेंडेंस लेने के लिए।